This video is sponsored by Zaro, and Zaro is a great, easy to use tool to design website without having any coding knowledge and designing knowledge. With Zaro Premium, which you will get at the best price as compared to the market, you will get have an access to all premium features and tools, which is going to be really helpful for your website. You can understand, you can analyze how your website is performing with these tools. Let me show you how you can design website with Zaro. First, create a free account on Zaro and choose a lot of templates available. You can choose any template and you can make changes to these template and design website accordingly. I've done changes to this website. You can add element through this add element section. You can add text, button, image, video, anything by just drag and drop. So let me show you how you can do that. I'm going to add one element here. I'm going to add image here. So you can see just a drag and drop and element is here. You can design a website, a beautiful website within an hour. So you can add style, you can add pages with just single click, add new page, and you can also preview website on mobile devices. You will have access some great tools like integrations of Google Analytics, Hotzar, Facebook Pixel, Messenger Live Chat, and Google Tag Manager. You can analyze how your texts are performing, how your ads are performing. You can analyze complete data about your website, how your website is performing, so that you can gain more targeted audience. So you can also have option to domain registration with single click. You can also buy domain from Zaro. You can also have the option to set up your online store with some AI tools. You will also see some AI tools available on Zaro like the logo maker, a slogan generator, AI writers. You will see business name generator. So all these options available on Zyro. So go for Zyro Premium. You can apply code AD Technovation to get a 30% discount on Zyro. Check the link in the description below and also apply the code available so that you can get discount on Zyro, 30% discount. So go for Zyro. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडी टेक्नोवेशन। आई एम अमित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक के बारे में, जिसको लेकर आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, हमेशा से करते आए हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ऑफलाइन अर्निंग कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं, उन सभी को हम समझेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें आखिर तक, क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में एक अच्छी कमाई करने में और लॉन्ग टर्म अर्निंग में आपको मदद कर सकता है। इवन इन द ऑफलाइन मार्केट यू कैन अर्न मनी। आप दोनों ही जगहों पर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो कैसे होगा ये? इसकी पूरी प्रोसेस आपको समझाऊँगा मैं। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बेसिक स्टेप्स टू क्रिएट अ वेबसाइट एंड हाउ यू कैन अर्न मनी online and offline. I'm going to tell you each and everything. Okay, so first of all, ये चीज़ हम लोगों को समझना चाहिए कि जब हम वेबसाइट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि वेबसाइट क्रिएशन या वेबसाइट बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। कई लोग उस वजह से इस तरफ जाते नहीं हैं। जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम ढूँढ रहे हैं, वो कई तरह की छोटी-छोटी वेबसाइट पर काम करते हैं, छोटी अर्निंग वहाँ से होती है, लेकिन टाइम ज़्यादा जाता है और डिसअपॉइंट होकर वो इन कामों को छोड़ देते हैं। लेकिन जो मेन काम है, जिन पर आपको फ़ोकस करना चाहिए और जो कि आसान है, जिन्हें आप मुश्किल समझते हैं, वो आप नहीं करते, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म अर्निंग जो ऑनलाइन होनी चाहिए, वो आप नहीं कर पाते। तो फ़ोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू विल गेट टू नो कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितना आसान है ये चीज़ करना। और आप चाहो, अगर मेहनत करो, तो इस चीज़ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वेबसाइट बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले उन स्टेप्स को जान लेते हैं कि आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। कई लोगों को बेसिक से जानना रहता है, तो मैं उन चीज़ों को यहाँ पर कवर करूँगा और अर्निंग के जो ऑप्शंस हैं वो भी बताऊँगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि क्या स्टेप्स होंगी, बेसिक स्टेप्स एक वेबसाइट को बनाना अगर आप चाहते हो। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी वो होगी एक डोमेन नेम की। एक सूटेबल डोमेन नेम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डोमेन नेम क्या होता है? अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ, सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे समझें, तो एक ऐसा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा किसी वेबसाइट के एंड में लगा होता है .com, .net, .org, .in, .edu, .gov, इस तरह के एक्सटेंशन आपने देखे होंगे। ये सभी डोमेन नेम एक्सटेंशंस हैं और आपको इसी तरह का कोई डोमेन नेम अपने लिए सेलेक्ट करना होता है। ओके, अब
इसमें कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन-सा डोमेन नेम सेलेक्ट करें। ये आप डोमेन नेम जो है, इसके बारे में भी आप लोगों के सवाल आते हैं कि सर कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है? डोमेन नेम जब आप खरीदना चाहते हैं, आपको बहुत सारे डोमेन नेम प्रोवाइडर्स मिल जाते हैं, जो कि डोमेन आपको प्रोवाइड करते हैं। इसकी प्राइस होती है जो आप पे कर सकते हैं, बहुत ही कम कीमत पर आपको डोमेन नेम मिल जाता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे डोमेन नेम प्रोवाइडर, होस्टिंग प्रोवाइडर आपको मिल जाएँगे। तो आप अपनी पसंद से पहले रिसर्च कीजिए कि किस जगह पर आपको कम प्राइस में डोमेन मिल रहा है। कई बार डोमेन, होस्टिंग ये सभी एक पैकेज में कम कीमत में मिल जाते हैं, तो पूरी रिसर्च कीजिए कि सभी लोग क्या प्राइस दे रहे हैं और उसके हिसाब बाद आप सेलेक्ट करें कि कौन-सा आपको चुनना है, किस जगह पर आपको कम प्राइस में मिल रहा है, ओके? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अब मैंने आपसे बात की कि सूटेबल डोमेन आपको सेलेक्ट करना है, तो कई लोगों को लगता है डॉट कॉम बेस्ट है या डॉट नेट या क्या हमारे लिए बेस्ट है, तो इसमें देखिए सबसे प्रायोरिटी पर जो लोग चूज़ करते हैं, वो होता है डॉट कॉम। बिकॉज़ ये एक ट्रेंड है कि डॉट कॉम रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट है। बट अगर फिर भी कई लोगों को ये डॉट कॉम नहीं मिल पाता है, जो कि बहुत बार हो जाता है आपके नाम के साथ क्योंकि डॉट कॉम हर कोई लेना चाहता है। तो आप और भी कई ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं, डॉट नेट के साथ जा सकते हैं या डॉट ओआरजी या डॉट इन जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। तो अगर आपका काम बहुत ज़्यादा कई कंपनीज़ जो होती हैं, जो बड़ी-बड़ी उनको डॉट कॉम ही चाहिए रहता है, तो वो इस पर ज़्यादा ध्यान देती है। पर अगर आपका काम उस लेवल से नहीं है, तो आप और अदर ऑप्शंस पर जा सकते हैं और इसमें अच्छी बात ये रहती है कि आपको ये बाकी जो डोमेन एक्सटेंशंस हैं, डॉट कॉम के अलावा वो कई बार कम कीमत पर मिल जाते हैं। तो आपको प्राइसिंग कम हो जाती है अगर आप अपने किसी नॉर्मल काम के लिए वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको इस बात से कोई चिंता नहीं है। आपको सिर्फ लिंक शेयर करनी है अपनी वेबसाइट की और काम हो जाएगा। तो आप किसी भी एक्सटेंशन को चूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी वेबसाइट प्राइसिंग कम हो जाएगी और आप एक कम प्राइस में वेबसाइट बना सकते हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? अब दूसरी चीज़ आती है गेट होस्टिंग एंड कनेक्ट डोमेन विथ होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म। अब यहाँ पर दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप डोमेन नेम खरीद लेते हो, उसके बाद आपको होस्टिंग चाहिए। अब कई लोग डोमेन अलग जगह से खरीदते हैं और होस्टिंग अलग जगह से। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए डोमेन आपने खरीद लिया, ठीक है? डॉट कॉम, डॉट नेट जो भी आप अपने नाम से जो डोमेन खरीदना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का एक पूरा एड्रेस खरीदना चाहते हैं, आपने अपना वो बना लिया। मान लीजिए कि आपने अपने वेबसाइट का एक नाम लिया जो डॉट कॉम पर रजिस्टर कर लिया, ओके? तो अगर मैं बेकरी खोलना चाहता हूँ तो mybakery.com ये मैंने रजिस्टर करवा लिया, ठीक है? तो एनीथिंग जो आप रजिस्टर कर लेते हैं डोमेन में, उसके बाद आपको चाहिए होस्टिंग। होस्टिंग को आप इस तरह से समझें कि आपकी वेबसाइट को होस्ट करना पड़ता है। आप कहीं न कहीं आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है, उसको एक होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म होस्ट करता है, जहाँ आपकी वेबसाइट के पेजेज़ होते हैं, कंटेंट होता है और बेसिकली वहाँ से आपकी वेबसाइट मैनेज होती है। तो आपको वो जगह चाहिए, एक तरह से उस जगह को समझ लीजिए, उस प्लेस को समझ लीजिए, जहाँ पर आपकी वेबसाइट होगी। और सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ सकें। तो ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, एक तो डोमेन नेम और उस डोमेन नेम की वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एक होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म। अब ये भी होस्टिंग प्रोवाइड करने वाले बहुत सी वेबसाइट हैं, आजकल ऑनलाइन हैं, ऑफ़लाइन भी कई लोग इस काम को करते हैं, पर ऑनलाइन आप सेलेक्ट करें, वहाँ पर सस्ता मिल जाता है, कम कीमत में मिल जाएगा। कई बार डोमेन और होस्टिंग एक ही जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो प्रोवाइड करता है, एक ही कंपनी, एक ही वेबसाइट प्रोवाइड करती है, पैकेज देती है, उस पे भी आप ध्यान दें। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, एक जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे, 2, 3, 4 प्लेटफ़ॉर्म आप देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा सबकी प्राइसिंग में क्या अंतर है और आप अपनी बेस्ट डील सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है और आपको अच्छी प्राइस मिल जाती है आज के टाइम में, ओके? तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, इसके साथ आपकी शुरुआत होगी। अब अगर हम नेक्स्ट चलें इसके बाद में तो आपको उसके बाद अपनी जो वेबसाइट के डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं, वो अपलोड करने होंगे। अब डिज़ाइन टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है कि जो वेबसाइट के जो पेजेज़ दिखाई देते हैं, जिन पर लोग एक्सेस करते हैं, आप भी जब वेबसाइट को खोलते हैं, तो वो वेबसाइट के डिज़ाइन होते हैं एक तरह से। अब जो डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं, वो कहीं से भी कई जगहें हैं, जहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और फिर बाद में उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यानी कि उनमें बदलाव कर सकते हैं, कस्टमाइज़ का मतलब ये है। तो कई लोग यही करते हैं, फ्री वेबसाइट डिज़ाइन टेम्पलेट्स को लेकर उनमें बदलाव करके वेबसाइट बना लेते हैं। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि कई तरह की ऐसी प्लेटफ़ॉर्म है जो ऑटोमैटिकली आपको टेम्पलेट देते हैं और वहाँ बहुत ही छोटे-छोटे चेंजेज़ करके आप बहुत ही कम टाइम में आधा घंटे में, 1 घंटे में आप अपनी वेबसाइट तैयार कर सकते हो। तो वो भी आज की टाइम में बेस्ट डील है अगर आप बहुत बड़े क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी नॉर्मल वेबसाइट को बना रहे हो जहाँ सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, अपनी कोई पर्सनल वेबसाइट बना रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ़ आपको
सिंपल आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपके प्रोडक्ट की जानकारी है या कुछ भी है, जो बहुत ही सिंपल काम है ना? जहाँ पर आपको पेमेंट नहीं लेना है, गेटवेज़ नहीं है। अगर आप उस तरह की कर रहे हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो और बनी-बनाई आपको टेम्पलेट मिल जाती है, उसमें थोड़े-थोड़े चेंज कीजिए और आप अपनी वेबसाइट 1 घंटे में तैयार कर सकते हैं। आजकल तो सभी वेबसाइट कई ऐसे वेबसाइट प्रोवाइडर हैं, ऐसे वेबसाइट बिल्डर हैं जो कि आपको पेमेंट वगैरह हर तरह का ऑप्शन देते हैं। बट अगर आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिर्फ़ इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर प्रेफ़र कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 4th पॉइंट है कस्टमाइज़, वो हमने इसी में कवर कर लिया। कस्टमाइज़ का मतलब यही होता है कि जो टेम्पलेट हैं, वेबसाइट के जो पेजेज़ के डिज़ाइन हैं, वो जब आप अपलोड करते हैं और फिर उसमें अपने हिसाब से बदलाव करते हैं। आपको आपका नाम डालना है, आपको आपका कंटेंट डालना है, क्या लिखना है, कौन-सी इमेजेस लगानी है, कौन से वीडियोज़ वहाँ पर डालने हैं, वो सब सेट करना पड़ता है, ताकि वो वेबसाइट आपकी बन जाए, राइट? तो इस तरह से कस्टमाइज़ होता है और फिर आपकी खुद की वेबसाइट बन जाती है। तो वेबसाइट एक टेम्पलेट एक तरह के आपको साँचा बना कर देते हैं और जिसमें आप चेंज करते हैं और अपना जो डिज़ाइन है वो उसमें बना लेते हैं और आपकी वो वेबसाइट बन जाती है। तो जल्दी काम होता है इससे, आप वेबसाइट बिल्डर्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक बेस्ट ऑप्शन होते हैं आज के टाइम में, ओके? तो इस तरह से ये खुद सिंपल स्टेप्स हैं और इनके अंतर्गत आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं इनको फ़ॉलो करके कोई मुश्किल काम नहीं है, आज के टाइम में डोमेन, होस्टिंग सभी बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिल जाते हैं, आप खुद सर्च कीजिए। बहुत ही कम कीमत पर वेबसाइट बना सकते हैं और आप जानते हैं कि एक वेबसाइट की पावर ये होती है कि आप वेबसाइट आपके पास है, तो ऐसे कई रास्ते खुलते हैं जो आपको पैसे कमाने में चाहे ऑनलाइन अर्निंग हो, चाहे ऑफलाइन अर्निंग अवेलेबल हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ कि कौन-कौन से ऑप्शन हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑनलाइन को समझ लेते हैं क्योंकि ऑनलाइन पर ज़्यादा फोकस है। ऑनलाइन कैसे अर्निंग होती है वेबसाइट से, वो हम प्राइमरी सोर्सेज़ पर बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहला जो सोर्स है वो है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस क्योंकि ये गूगल का है, कई लोग इसके बारे में शायद जानते हो, नहीं जानते हैं तो समझ लें कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट को गूगल एडसेंस से लिंक कर सकते हैं, ओके? तो गूगल के एडसेंस पर अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री होता है। गूगल एडसेंस एक ऐसी सर्विस है जिससे आप अपनी वेबसाइट को लिंक जब कर देते हैं फ्री में, तो आपको वहाँ से आपकी वेबसाइट पर गूगल की तरफ से एड्स आना शुरू हो जाते हैं, विज्ञापन आना शुरू हो जाते हैं और उन विज्ञापन के, उन एड्स के आपको पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से ये अर्निंग का सबसे प्राइमरी सोर्स है। बड़े हों या छोटे लोग हों यहाँ पर जो ऑनलाइन वर्ल्ड में, वो सभी इस मेथड को तो यूज़ करते ही करते हैं। तो प्राइमरी सोर्स है, कोई भी कर सकता है और बिल्कुल फ्री में कर सकता है इसको। तो गूगल का कुछ क्राइटेरिया है एडसेंस का, आपकी वेबसाइट पर जब थोड़ा ट्रैफ़िक आने लगता है, व्यूज़ आने लगते हैं, लोग देखने लगते हैं, तो आप वेबसाइट को गूगल एडसेंस से लिंक कर सकते हैं और वहाँ से जो आपको पेमेंट आता है, वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आप ले सकते हो। इसका अलग एक प्रोसीजर है, अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं अपनी आगे आने वाली सीरीज़ में इस तरह की चीज़ों को कवर ज़रूर करूँगा, जिससे आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझने का मौका मिले। ओके, स्टेप्स को समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गूगल एडसेंस सबसे बड़ा एड नेटवर्क है और एक ऑप्शन है ट्रस्टेड है, तो आप इसको प्रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा भी कई एड नेटवर्क्स होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ गूगल से ही एड्स हम लगा सकते हैं। तो ऐसे इसके अलावा भी कई एड नेटवर्क्स हैं जहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो और अपनी वेबसाइट पर एड्स चलवा सकते हो और उससे भी पैसे कमा सकते हो। तो वो एक अलग मैटर होगा, आप जब करते जाओगे तो आपको खुद इन चीज़ों में मज़ा आएगा और आप कई तरह के रास्ते खोज सकते हो। तो एड नेटवर्क्स की कमी नहीं है जो आपकी वेबसाइट पर एड्स देने के लिए तैयार होंगे जब वेबसाइट आपकी अच्छा ट्रैफ़िक ले रही होती है, अच्छे लोग वहाँ पर विज़िट कर रहे होते हैं। ओके? तो ये सबसे पहला प्राइमरी साधन है। इसके अलावा है ऑनलाइन सेलिंग। अब मैंने यहाँ पर ऑनलाइन सेलिंग में अलग डिवीज़न नहीं किए हैं। ऑफ़लाइन और या सर्विस सेलिंग हो या प्रोडक्ट सेलिंग, आप मैं दोनों की ही बात कर रहा हूँ। जब आप सर्विस सेल करना चाहते हैं, आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाते हैं और जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो हो सकता है उसके ज़रिए आप अपनी कोई सर्विस सेल कर रहे हों, जिस चीज़ में आप बेटर हैं। सपोज़ अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो आप अपनी पर्सनल फ़ोटोग्राफ़ी स्किल को वहाँ पर दिखा सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं और वहाँ से अपने पैकेजेज़ को सेल कर सकते हैं। तो वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एरिया होगा और अगर आप कोई प्रोडक्ट सेलिंग में हैं, मान लीजिए आपकी खुद खुद की शॉप है, शोरूम है या फिर आप यूँ ही ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप वेबसाइट को वो माध्यम बना सकते हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकें और वहाँ से लोगों को सेल करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, परचेज़ करने के लिए ला सकते हैं और उन्हें सेलिंग कर सकते हैं। तो आजकल इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत होता है, आपने देखा है, कई लोग ऐसे इसी तरह से कोशिश करते हैं। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उन्हें दिखाई दे कि वो क्या खरीद रहे हैं, क्या सर्विस है, उसके बारे में देखना सब चाहते हैं।
तो हर कोई चाहे वो पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हो या फिर बिज़नेस ब्रांडिंग कर रहा हो, वो यही करता है कि वो अपनी एक वेबसाइट बनाता है और वहाँ पर अच्छे से उसको शोकेस करता है, लोगों तक पहुँचाता है और लोग वहाँ से ऑर्डर देते हैं, उसकी कमाई होती है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद है एफ़िलिएट मार्केटिंग। एफ़िलिएट मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। एफ़िलिएट मार्केटिंग के ज़रिए लोगों ने लाखों कमाए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग भी ये कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट के ज़रिए एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। एफ़िलिएट मार्केटिंग के बारे में मैंने बहुत सारी डिटेल ऑलरेडी बताई हुई है चैनल पर, तो आप देख सकते हो। फिलहाल इतना बता देता हूँ कि एफ़िलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि आप जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या यूडेमी या इस तरह की जो बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर आप प्रोडक्ट की बात करें या कोर्सेज़ की बात करें या कोई भी चीज़ें हैं, आज केवल लिमिटेड नहीं रह गया है, एफ़िलिएट प्रोग्राम आजकल हर वेबसाइट के रहते हैं। तो आप उनको अपने वेबसाइट के माध्यम से सेल कर सकते हो, उनके प्रोडक्ट्स को। जब आपके वेबसाइट के माध्यम से उन पर जो एड्स होते हैं, उन पर जो प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है, उसके ज़रिए लोग डायरेक्ट होते हैं, रीडायरेक्ट होते हैं और उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, तो आपको उसका कमीशन मिलता है। और ये सबसे बड़ा सोर्स है और सबसे बड़ी अर्निंग का सोर्स है, आप अपनी वेबसाइट से जो कर सकते हो। तो एफ़िलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी, आप चाहो तो मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं आगे इसके वीडियोज़ बनाऊँगा। चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा है स्पॉन्सरशिप, ये एक बहुत ही प्राइम सोर्स है। स्पॉन्सरशिप के बारे में मैं आपको बता दूँ कि वेबसाइट पर आपने देखा होगा कई तरह के प्रोडक्ट के रिव्यूज़ होते हैं, कई तरह की चीज़ें रहती हैं जिसके बारे में बताया जाता है। आप अपनी वेबसाइट को भी जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो कई तरह के स्पॉन्सर आपके कंटेंट के अनुसार आपको अप्रोच कर सकते हैं या आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो स्पॉन्सरशिप है वो मिलने लगती है, ब्रांड मिलने लगते हैं जो आपको अप्रोच करते हैं। सपोज़ आप एक मोबाइल के रिव्यू करते हो अपनी वेबसाइट पर, मोबाइल के बारे में बताते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हो, तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग, जो कंपनीज़ हैं वो आपको इस चीज़ का स्पॉन्सरशिप देती हैं, उसका पैसा भी मिलता है आपको और आप उनके प्रोडक्ट को रिव्यू करके इसको यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। ये भी एक अच्छा खासा सोर्स है और इवन नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, आप इंडिया के बाहर से भी आपको कई स्पॉन्सर मिलते हैं जो कि आपको पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के माध्यम से। तो ये प्रैक्टिकल सोर्सेज़ हैं, बड़े-बड़े, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। मैं लिस्ट बहुत लंबी बना सकता हूँ लेकिन मैंने मेन सोर्सेज़ को कवर किया है। इसमें जब आप काम करोगे, जब आप नए हो तो आप इसको इतना ही काफ़ी है, अगर आप इतनी चीज़ों से स्टार्ट करोगे तो ही आपको बहुत सारे रास्ते खुल जाएँगे, फिर आप अपने आप एक्सपर्ट बनकर आगे चल सकते हो। आई गेस ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं एक ख़ास और चीज़ की बात करूँ, एक और बहुत ही ज़रूरी तरीका है जो आपको समझना चाहिए, आप लोग जो देख रहे हैं समझें इसको, कि आप जब वेबसाइट बना रहे हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है एक फ्रीलांसर वेब डिज़ाइनर या डेवलपर के तौर पे काम करने का। आप चाहो तो आप अपनी वेबसाइट बनाकर उसी को इस्तेमाल कर सकते हो अपने पोर्टफ़ोलियो के तौर पर, कि आपने ये किस तरह से आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हो, डेवलपमेंट करते हो, अपने पैकेजेज़ बना सकते हो। आप साथ-साथ में अगर आपको लोगो बनाना आता है, आपको बैनर बनाना आता है, आपको और भी चीज़ें आती हैं, तो सभी की रेट्स बनाकर एक खुद की पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो और उसको ऑफ़लाइन मार्केट में प्रमोट कर सकते हो। आप नॉर्मल लोकल मार्केट में। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई बिज़नेसमैन हैं, स्कूल हैं, क कॉलेजेस हैं जो वेबसाइट बनवाना चाहते हो और आप अपने आप को एक फ्रीलांसर के तौर पर बिज़नेस को आप अपने प्रमोट कर सकते हो वेबसाइट के ज़रिए। ट्रस्ट बनता है, लोग बिलीव करते हैं और आपको अच्छे ऑर्डर मिल जाते हैं। कई लोग इस तरह की चीज़ों को ऑलरेडी कर रहे हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स भी होकर भी आप ये कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी लेवल पे कर सकते हो आप। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा प्राइम सोर्स मानता हूँ मैं और पर्सनली मैंने इसको किया हुआ है, तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर कर सकते हो कि पर्सनली अपना ब्रांडिंग कर सकते हो और काम उठा सकते हो मार्केट से और अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा है, अगर आप में 3-4 लोगों की आपका टीम बना लो और एक छोटी-सी कंपनी फ़ॉर्मेट कर लो, जो कि बहुत बड़ा काम नहीं है, लोगों को घबराते हैं, लेकिन सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करके आप 3-4 लोगों की एक कंपनी बना सकते हो। बाद में आप बढ़ा सकते हो उसको, आप वहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इसके अलावा अदर रिलेटेड सर्विसेज़ जो कि मान लीजिए बैनर डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग है या कोई भी तरह के फ्लायर डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग का काम साथ में आप इन्वॉल्व कर सकते हो और इससे आपको ऑफ़लाइन ऑर्डर्स भी आते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, तो सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हो, वहाँ से ऑर्डर आते हैं और आप एक अच्छा खासा अपना नेटवर्क बना सकते हो। ट्रस्ट मी, डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट बहुत सारे होते हैं, चाहे ऑफ़लाइन में हो, हर किसी को ये काम की ज़रूरत पड़ती है। वेबसाइट्स को लेकर लोगों को ज़रूरत होती है। आप इसके ज़रिए डेफ़िनिटली कमा सकते हो और ये बहुत ही पुराना सोर्स है अर्निंग का और आज भी इसके ज़रिए लोग अपना कमाते हैं। सो ये दोनों ही तरीके मैंने बताए, अगर आप इंडिविजुअल करना चाहो या 3-4 लोग मिलकर करना चाहो,
तो और स्केल बढ़ेगा और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। सो आई गेस ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आई गेस ये वाला जो ट्यूटोरियल है वो आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। सिंपल स्टेप्स में मैंने बताने की कोशिश की। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं आगे भी आपको इस तरह के नॉलेजफुल वीडियोज़ शेयर करूँ आप लोगों से। तो इनको फ़ॉलो कीजिए, स्टार्ट कीजिए, टेक एक्शंस, तभी आप ऑनलाइन वर्ल्ड हो या ऑफलाइन वर्ल्ड कुछ बड़ा कर सकते हैं। एंड छोटी-मोटी चीज़ों को छोड़कर आपको बड़ी चीज़ों पर फ़ोकस करना चाहिए। तो आई गेस बहुत सिंपल है, कम कीमत पर आप एक बड़ा सेटअप कर सकते हैं और आगे लॉन्ग टर्म में अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। आई होप इट विल हेल्प यू। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर लॉट ऑफ पीपल। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेल यू समथिंग मोर अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नहीं जुड़े हैं, और बेल बटन ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ आगे के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। ओके एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।